Sports Guard's objectives for 2025? One, we want to grow with a compound annual growth rate, like with a 20 to 25% without diluting our profitability, our service, our operational capability. Secondly, we want to be a number one brand in education, सिर्फ South India में नहीं, pan India में. Thirdly, in badminton segment, we already a brand in a big brand in South India. We want to be a national brand. This year we have done around 150, constructed 150 badminton courts. Next year we are looking to construct around 250. Lastly, our maintenance ka business. Maintenance mein now we are doing 10 to 12 projects. Idea is to keep our clients 100% happy, to retain those clients, right? We want to keep it very, very simple. Matlab, I won't say कि हमारे कुछ अलग goals हैं, and this is what we are doing it, but maybe 30-40% better. With expansion plans across India, how does Sports Guard ensure to maintain the same quality and service across? हम इसको फर्स्ट थिंग, कोई भी बिजनेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे कोई छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्केल. तो विल डू इट इन 3 वेज. एक तो मैंने लास्ट टाउन हॉल में बोला था कि स्पोर्ट्स गार्ड हम ऐसा है कि आप अगर बिल्डिंग की तरह एक एग्जांपल लोगे ना, स्पोर्ट्स गार्ड एक 100 फ्लोर की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं बना रहे. हमारा फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो 3 थिंग्स विल डू. 1, टेक्नोलॉजी, SOPs, processes. Secondly, creating leadership, good team, second line leaders. Third, being very mindful, accepting our business. कुछ भी मैनुअल नहीं है. हमारी जो इन्वॉइसिंग है वो भी 100% सब है. पोस्ट सेल्स में भी हम अपनी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं. और मार्केटिंग साइड में वी आर यूजिंग नाउ सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, राइट. उसके लिए हमें ज़्यादा सेल्स वाले लोग हायर नहीं करने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर 2, व्हेन आई टॉक अबाउट टीम, जब मैं we are creating a second line leaders, we are creating a third line leaders, we are creating a first line leaders. People, बड़े बड़े लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि 3 करोड़ का बिजनेस कर लो, 4 करोड़ का कर लो. Certain things are non negotiable with Sports Guard. 1, we'll do a good quality work. If someone asks us to do सस्ते में सस्ता काम लगा दो, at the end of the day we are putting our brand on stake. We don't do that. Credit, no. Payment terms, no. उसके बाद profitability, we work on a certain profits. Very well summed up. Now may I ask you, what leadership lessons have you learnt in the last year? चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, एक तो how to say no. Now I ensure every month I'm saying no 40 times. No to unreasonable demands of employees. No to unreasonable demands of vendors. No to unreasonable demands of client. No to everything which does not align with our company strategic goals. This is one. Second point is, learned one thing: I don't take decisions spontaneously. What I do, I intentionally have just promised to myself, any decision which is critical, I'll take 30 days. I go back home, I talk to her, I talk to her, I talk to him, I talk to my dad, I do some research, I think about 20 days, then I come back, then I say, okay guys, like this is, like we wanted to make our maternity, paternity, HR policies, right? So this is the second thing. थर्ड पॉइंट ये है कि लास्ट टाइम आपने पूछा था, मैंने ऑपोजिट जवाब दिया था. आपने बोला था क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर देती है. मैंने बोला मुझे वो चीज़ प्रेशर देती है कि बीइंग अ ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम सपोज टू नो एवरीथिंग, आई शुड हैव अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. पर नाउ वन वाइज मैन टोल्ड मी वंस, नाउ आई हैव लर्नड इन अ गुड वे, कि वाइल आई एम रनिंग अ कंपनी, माई जॉब इज़ नॉट टू बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन. माई जॉब इज़ नॉट टू बी कि मेरे पास हर चीज़ का जवाब नहीं होना चाहिए. What my job is, what I have done, I have hired Komal. I have no shame in saying she is better than me in communication, okay, in client handling. I have hired Adnan. He is better than me in execution, okay. Swapna definitely better than me, discipline, admin, and someone like Mahesh, HR and plan. I'm happy. So that's how at least my thought process has evolved. So now if you say like, I'm the dumbest person heading this company and my all guys are smarter and happy. Okay. Deepak, my next question to you is, how much revenue you are expecting, and can we expect Sports Guard offices to shape up pan-India? There is no point life में grow करने का अगर mental peace compromise हो रही है. There is no point. कोई point नहीं है कि मैं अपनी sale 10x बढ़ा लूँ, clients का काम नहीं कर पा रहा. कोई फ़ायदा नहीं है 20 कंट्रीज़ में ऑफिसेज खोल लूँ, हम क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर पा रहे. कोई फ़ायदा नहीं है कि हम प्रॉफिट्स भी कमा लें और आप आपस में झगड़ रहे हो. मैं इससे 3 गुना पैसा ले आऊँ और मैं बीपी का पेशेंट होके मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ा हूँ.
सो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, पैसा चाहिए, 100% प्रॉफिट चाहिए, मुझे चाहिए पैसा, आपको भी चाहिए, राइट? सबको चाहिए, सबको अर्न करना है पैसा। मुझे पैसा चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली फॉर माई डॉटर, फॉर माई फैमिली, फॉर माई पेरेंट्स। और मेरा नाउ आई एम 38, मेरा 20s में विश था, आई वांटेड टू डू अ स्काई डाइविंग, आई वांटेड टू डू अ स्कूबा डाइविंग, आई वेंट फॉर अ बंजी जंपिंग वंस। दुनिया घूमनी है, राइट? आई एम इन अ वेरी वेरी गुड पीस ऑफ माइंड, वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं आपके लिए भी ये चाहता हूँ, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये चाहता हूँ कि आप सब लोग पैसा कमाओ। पैसे से क्या होता है ना, पैसे से एक तो चॉइसेस मिलती है लाइफ में, राइट? आप लाइफ को अपनी टर्म्स पे स्पेंड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, हम अच्छा खाना खा सकें, अच्छी तरह से रह सकें। पैसा चाहिए, पर पैसे के ट्रैप में नहीं फंसना है। लाइफ में ना सबको ये मालूम होना चाहिए इनफ कितना है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि इनफ, कि आप अपनी सारी नेसेसिटीज़ कंप्लीट कर सकते हो। उस इनफ के बाद ना जितना पैसा आता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। कुछ लोग हैं इलोन मस्क जैसे हैं, इनका इनफ होता ही नहीं है, दैट्स ओके, दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। पर हमें अपनी वो डेफिनेशंस क्रिएट करनी है कि हमारे लिए इनफ कितना है, कितना हमें चाहिए। आपको 1 साल में कितना चाहिए, 5 साल में आपको कितना चाहिए, आपको 10 साल में पैसा कितना चाहिए। आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे, मैं रिटायर होऊंगा कितना चाहिए, या मेरे को अपनी बेटी के लिए कितना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जब आपको लिखना है तो स्पोर्ट्स गार्ड में आपको भी मालूम है एक प्लेटफॉर्म है कि आप सब लोग वो अपनी विशेष पूरी कर सकते हो। इफ़ यू फील कि भाई आपका जितना आप आज अर्न कर रहे हो उससे 5x है, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू हैव टू इंक्रीज योर स्किल्स, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है। सो आई विल सम अप इन दिस वे, कोमल की ग्रोथ करनी है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, एंड वी वांट टू हैव दीज काइंड ऑफ टाउन हॉल्स गोइंग फॉरवर्ड, राइट? आई हैव 100% क्लैरिटी। Next question is, other than profits, how do you measure success at Sports Guard? जो मैंने आपको अभी बोला ना, इससे पहले एक चीज़ बोला कि प्रॉफिट्स तो चाहिए ही चाहिए। कहता कि लाइफ में पैसा होना कितना चाहिए, कम की तो डेफिनेशन है, कम की डेफिनेशन है कि ज़्यादा की नहीं है। कम की डेफिनेशन ये है कि इतना पैसा होना चाहिए कि हम अच्छे से रह सकें, अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज सकें, अच्छे से खा सकें, जो अपनी नीड्स हैं पूरी कर सकें। पर ज़्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? तो जो मैं इनफ बोल रहा हूँ, एवरीवन हैज़ टू हियर डिफाइन अपनी अपनी डेफिनेशन। तो स्पोर्ट्स गार्ड में हमें प्रॉफिट चाहिए, पर वहाँ तक प्रॉफिट चाहिए जहाँ तक हमारी पूरी टीम का टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं हो रही है। Wonderful.